नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। लेकिन यहां से सीधे रुख करते हैं फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग का, जहां पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एड्रेस कर रहे हैं। Fund it has flown to, it has moved to microfinance institutions, and some of it has also flowed to small NBFCs. So therefore we have not, we have taken care of that particular segment of MFIs, smaller size NBFCs, and what you call the cooperative banks. In fact, NABARD, even in the last announcement in August, we announced another 10,000 crore for NABARD. So we are constantly, and through SIDBI also, a lot of capital, lot of liquidity, lot of liquidity has moved to various MSME and MFIs also. So, and we are in constant engagement with all these all India financial institutions like NABARD, SIDBI, and the National Housing Bank. And we are also very carefully monitoring the markets, and as and when required, further measures will be taken. I have said it earlier during my various statements that the RBI stands fully prepared. In fact, I had used the terminology that the RBI stands battle ready, and whatever measures are required will be taken up by the RBI. And here I must also like to take this opportunity to compliment and thank my colleagues in RBI who have been working day in and day out in supporting me and in facilitating many of these decisions, timely and proactive decisions. Now, the immediate policy response to COVID in India has been to prioritize the stabilization of the economy and support a quick recovery. Policies for durable and sustainable high growth in the medium term after the crisis, nevertheless, are quite important. And in my address today, I propose to dwell upon that issue squarely. What could potentially lift up India's economy to trend growth as the recovery begins? While interacting with members of the CII on July 27th, I had covered 5 major dynamic shifts taking place in the Indian economy. Number 1, fortunes shifting in favor of the farm sector. Number 2, changing energy mix in favor of renewables. 3, leveraging information technology, ICT, and startups to power growth. 4, shifts in supply or value chains, both domestic and global. And 5, infrastructure as the force multiplier for growth. Today, I would like to touch upon 5 different areas that I feel would determine our ability to step up and sustain India's growth in the medium term. Number 1, human capital, in particular education and health. Number 2, productivity. 3, exports, which is linked to raising India's role in the global value chain. 4, tourism. 5, food processing and associated productivity gains. Let me first touch upon human capital, the importance of, and with specific reference to the importance of education and health, and the need to take certain measures in these 2 areas. Now, investing in people adds to the stock of skills, expertise, and knowledge available in the country. The assignment of importance to education dates back to Plato, Aristotle, Socrates, and Kautilya. Its significance for economic development has received progressively increased attention in recent decades, especially in the work of several Nobel laureates, including T.W. Schultz, Gary Becker, Robert Lucas, and James Heckman. There has come about an explicit recognition of education as human capital in endogenous growth theory, backed up by cross-country empirical evidence. In India, states with higher literacy rates are found to have higher per capita income, lesser infant mortality, better health conditions, and also lower poverty. Education and skill development, however, contribute less than half a percentage point to our overall labor productivity growth. In order to reap the demographic dividend, we have to raise expenditure on education and acquisition of skills substantially. It is important to recognize that investment in education pays by raising average wages. In Global Education Monitoring Report of 2012, the UNESCO highlighted that every $1, that is every $1 spent on education generates additional income of about $15.
तो फिक्की कार्यक्रम में आरबीआई गवर्नर को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना संकट का आकलन करना, अनुमान लगाना अभी मुश्किल जरूर है, लेकिन हाँ, जून जुलाई में कुछ सेक्टर्स में सुधार के संकेत दिखे हैं। फाइनेंशियल मार्केट की स्थिति थोड़ी बेहतर होती हुई दिख रही है, इकोनॉमी में भी सुधार के इंडिकेशंस मिले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि आरबीआई पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, जब जरूरी होगा आरबीआई नेसेसरी स्टेप्स उठाएगा। तो ये बयान उनकी ओर से आते हुए, लेकिन चलिए वापस रुक करेंगे गोल्ड स्पॉट की तरफ। सोने चांदी में आज मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर दाम 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर के करीब हैं। डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बाजार की नजर फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों पर है। फेड के ऐलान से पहले सोने चांदी में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए? अभी सोने में निवेश बेहतर है या फिर चांदी पर दाव लगाना चाहिए? इसी पर बातचीत करेंगे। साथ ही इन दोनों प्रेशियस मेटल्स के लिए अब क्या बड़े ट्रिगर्स है, इसी पर हमारा फोकस होगा। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिएटर मनीषा गुप्ता है, रिद्धि सिद्धि बुलियंस के पृथ्वीराज कोठारी हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। पृथ्वीराज जी, सबसे पहले आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। पहली चीज तो ये कि इंपोर्ट ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि रिकॉर्ड हाई से अगर सोने के प्राइसेस देखें तो अभी भी 4000 नीचे हैं। सोना इन स्तरों के आसपास स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी भले ही डिमांड सुस्त है, लेकिन आगे के लिए इंडिकेशन क्या मिल रहे हैं? कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करोगे तो अभी भी सोने में तेजी ऐसे बरकरार रहेगी कि डॉलर, अगर आप डॉलर इंडेक्स के ऊपर देख रहे हो तो अभी भी डॉलर काफी वीक है। रही बात यहाँ पे, अभी धीरे धीरे सीजन आगे आ रहे हैं, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा तो अभी भी $30 डिस्काउंट में गोल्ड है, $2.4 डिस्काउंट में चांदी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अभी भी डिस्काउंट बरकरार रहेगा जब तक कि सीजन स्टार्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली एवरीवेयर इज द लिक्विडिटी क्राइसिस है ये सब जगह पे, और हर एक लोग अभी प्रॉफिट टेकिंग बुकिंग करने आ रहे हैं। अब जैसे जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट खुल रहे हैं, आने जाने का साधन हो रहा है, तो लोग काफी बेचने भी आ रहे हैं और उसके सामने डिमांड बहुत कमजोर है। तो उस हिसाब से थोड़ी डिस्पैरिटी मार्केट में, पहले $53 डिस्काउंट तक गया था, अब धीरे धीरे $30 डिस्काउंट पे आ गया। इंपोर्ट की कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है। फिजिकल डिमांड अभी कहीं यहाँ पे है नहीं है। इवन चाइना में भी कहीं पे भी डिमांड नहीं है। सिर्फ यूएसए के अंदर अभी भी डिमांड काफी है। आप देखोगे तो फ्यूचर मार्केट और स्पॉट के वर्सेज जो थोड़ा बहुत डिफरेंस पहले कम हो गया था, वापस थोड़ा बढ़ गया है। मुझे लगता है कि टिल द यूएस इलेक्शन ये इसी तरह का वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। अब काफी अप डाउन रहेगा मार्केट में, पर फिर भी मैं सलाह दूंगा कि कोई भी आदमी बाय ऑन डिप्स बाय करके चलिए तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी वॉलेटाइल मार्केट रहेगी। एवरीडे आप $40-50 अप डाउन आराम से देखने को मिलेगा और बहुत सी वॉलेटिलिटी रहेगी, एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो रूपी। डॉलर इंडेक्स में भी वैसे तेजी मंदी रहेगी। एब्सोल्युटली कोठारी जी, जी एब्सोल्युटली कोठारी जी। और जैसे आपने कहा, उठापटक यहाँ पर जारी है और यूएस के इलेक्शन से पहले और तब तक यहाँ पर मूवमेंट ऐसी ही रह सकती है। लेकिन काफ़ी सारे बैंक्स जैसे सिटी है या बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच है, सबका यही मानना है कि $2100 पर आउंस के लेवल्स हमें इस साल में देखने को मिलेंगे और अगले साल इसके ऊपर और बिल्डअप देखने को मिल सकता है। तो किस तरह के स्तर फिर हम भारतीय बाजारों में यहाँ पर एक्सपेक्ट करें? देखिए, भारतीय बाजार में अगर डॉलर इंडेक्स डॉलर वीक होते जाएगा तो यहाँ अपना रुपी अप्रिशिएट होते जाएगा। मुझे रुपी को 71-72 रुपी देख रहा हूँ, क्योंकि रुपी अप्रिशिएट होते जाएगा। पर इन टर्म्स ऑफ $2100 होता है तो यहाँ पे आपको 60,000 के आसपास ही भाव आएंगे, 58 से 60,000, क्योंकि यहाँ पे उतना इफेक्ट उस पर नहीं आएगा गोल्ड पे। यहाँ पे $2100 अगर होता है तो यहाँ पे 60,000 के आसपास बाजार 58 या 60 के बीच में होगा। ज्यादा उसके ऊपर मुझे नहीं ध्यान दिख रहा है। पर धीरे धीरे अगर यूएस इलेक्शन के बाद में पोजीशन होती है, वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो फिर वही गोल्ड 1850 के आसपास आके आने की संभावना है। तो 1850 और ऊपर में 2100 एक रेंज यहाँ पर बन सकती है पूरे साल के लिए। कोठारी जी, एक फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से, और वो ये कि पूरा साल जैसा भी गया हो, लेकिन हर साल का लास्ट क्वार्टर होता है, यहाँ पर सब फेस्टिवल्स और दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, एक्सपोर्ट ज्वेलरी, अब जो लास्ट क्वार्टर के भी नंबर्स आए हैं वो बहुत बेहतर नहीं आए हैं, लास्ट महीने के भी नंबर्स बेहतर नहीं आए हैं ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स को लेके। लास्ट क्वार्टर में आपको लगता है कि एक बेहतर हम यहाँ पर नंबर्स देख पाएंगे? देखिए, जब तक ये पैनिक सिचुएशन है, अभी भी पैंडेमिक की जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, लोग अभी भी डर रहे हैं बाहर जाने से है। फिर पब्लिक व्हीकल्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, जैसे ट्रेन है, बसेस है, तो इस तरह का अभी तक है। और अभी भी कारीगर्स की प्रॉब्लम है, हर जगह के ऊपर यही है कि 30%, 40% में रन कर रहे हैं, तो मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। अभी भी लॉस में है, बट उसको सर्वाइव कर रहे हैं। तो मुझे होप है कि अगर जो फिगर्स है जो डाउन हो जाते हैं, अभी 80,000 पे 95 से 80 पे आ गए, तो ये फिगर जो ड्रॉप डाउन होते हैं तो थोड़ा एक लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है और लोग इजीली मूव करने लगते हैं। आज भी डर है, लोग न्यूज़ देखते हैं, टीवी में देखते हैं तो डर जाते हैं, फैमिली को बेचते नहीं है।
तो इस तरह का अभी भी वातावरण है। पर मुझे लगता है कि लास्ट क्वार्टर थोड़ा अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल है, उसके बाद में मैरिज सीजन भी स्टार्ट हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी ऑब्वियसली आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से थर्ड क्वार्टर अच्छा जाना चाहिए। जी, तो थर्ड क्वार्टर बेहतर रह सकता है और ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि जो फेस्टिव सीजन है, दिवाली सीजन है, उससे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सुनील, अगर इमीडिएट व्यू लेना हो तो क्या स्ट्रैटेजी आप रखेंगे गोल्ड पर? अभी 52,000 के आसपास प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, खरीदना है यहां से या फिर कोई और सजेशन है? आज क्योंकि फेड मीटिंग का आउटकम वेट करेंगे लोग, तो थोड़ा रेंज में रहेगा, बट मार्केट वॉलेटाइल जरूर रहेगा प्रेडिक्शंस के बेसिस पे। मुझे लगता है थोड़ा बहुत डॉलर में जो वीकनेस देखने को नजर आ रही है, उससे थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 51,850 के रेंज में एक बाई एंट्री जरूर देखने को मिल रही है और 51,650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 52,300 से लेके 52,400 का एक लेवल जो है डे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। और डॉलर टर्म में अगर हम बात करते हैं तो $1975 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर से हमें भाव जो है कॉमेक्स पे $2,000 के रेंज में जो है देखने को मिल सकता है। और जो फेड के मीटिंग का आउटकम है, मुझे लगता है वो ज्यादा जोर देंगे इंटरेस्ट रेट को, कब तक वो लो पे रखेंगे फेड फ्रंट पे और कैसे इन्फ्लेशन को बूस्ट करें। तो जो आउटकम आएगा मोर और लेस मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा गोल्ड में। जयप्रकाश, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को? क्योंकि जैसे कोठारी जी भी अभी कह रहे थे कि करीबन $2.5 के डिस्काउंट पर चांदी भी यहाँ पर भारतीय बाजारों में कारोबार कर रही है, लेकिन हल्की सी स्ट्रेंथ यहाँ पर फिर से लौटी है, मेटल्स का भी थोड़ा सपोर्ट है। सारा का सारा श्रेय एक्चुअली अभी तो यूएस फेड की मीटिंग को जाता है, उसके पहले हमने यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ देखा है, लेकिन यहाँ आप कैसे कारोबार करेंगे? देखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना और जर्मनी के डेटा निकल के आए हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप दिख रहा है, तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट इंडस्ट्रियल मेटल्स को मिलेगा और चांदी भी उससे अछूता नहीं है। मुझे लगता है 70,000 का लेवल हो सकता है आज या कल में एक बार क्रॉस करने को मिल जाए। दूसरी तरफ गोल्ड में भी अगर देखें तो जो फेड के अनाउंसमेंट्स हैं वो प्राइमरली रिवॉल्व करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट रेट को लेके। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस खराब हैं यूएस में। वो चाहते हैं कि 5.5 to 6% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहे, लेकिन रियलिटी कुछ और है, उससे ज़्यादा ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो गोल्ड के लिए ये काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। और यूएस इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आएंगे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और रुपी में भी यहाँ पे फर्दर कमजोरी देखी जा रही है। तो कुल मिला के ये लगता है कि बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति रखें बोथ गोल्ड एंड सिल्वर पे। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी गोल्ड सिल्वर दोनों पर होनी चाहिए। क्रूड को देख लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल में हमने देखा कि कल की 3% की बढ़त के बाद आज फिर से जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। जो तूफान सैली है उसके कारण गल्फ ऑफ मेक्सिको में 24% उत्पादन बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका में भी इन्वेंट्री घटने से कच्चे तेल की प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजी अभी क्या होनी चाहिए? सुनील, पहले आप बताइए, खरीद के चले यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस ऊपरी लेवल से तो काफी करेक्ट हुए हैं, तो इन लेवल से क्या व्यू रहेगा? जी दीपाली, मुझे लगता है कि जो हरिकेन की वजह से एक शॉर्ट टर्म में सप्लाई डिसरप्शन आया है, उसके वजह से हमने ऑलरेडी तकरीबन 170 रुपए का मूवमेंट देख लिया है अपसाइड में। 2,700 के लेवल से हमने अभी 2,870 2,890 के रेंज तक हमने ट्रेड होते हुए देखा है। तो मुझे लगता है नियर टर्म पर्सपेक्टिव से जो सप्लाई कंसर्न्स है वो वे अपॉन करेंगे प्राइसेस पे। और इवन लास्ट वीक का जो इन्वेंट्री था वो 2 मिलियन बैरल सरप्लस ही आया था और आज का भी इन्वेंट्री डेटा का अवेट करेंगे लोग। बट मेरा इंट्राडे स्ट्रैटेजी आज के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 40 रुपया तेजी में ओपन हुआ है आज मार्केट, तो मैं सजेस्ट करूंगा 2,870 के रेंज में एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 2,900 का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। फिर से मुझे लगता है 2,810 का एक टारगेट जो है देखने को मिल सकता है क्रूड में। यहाँ पर बिकवाली की राय कच्चे तेल में फिर से आती हुई, लेकिन मेटल्स में भी आज हमने मिक्स तरह के कारोबार देखे हैं। यहाँ पर भी अगर बात करें तो फेड क्या इंतजार रहेगा? डॉलर में हल्की सी वीकनेस है। चाइना का जो फैक्ट्री डेटा है वो 5वें लगातार महीने बेहतर आया और रिटेल सेल्स हमने इस साल में पहली बार अगस्त में बेहतर आती हुई देखी। तो क्लियरली काफी हद तक जो सपोर्ट है वो यहाँ पर चाइना से अभी भी मेटल्स में बरकरार है। जयप्रकाश, आप कैसे देखते हैं इस सेक्टर को और यहाँ पर क्या राय होगी? देखिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में मनीषा मुझे लगता है जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बरकरार रहना चाहिए। कॉपर प्राइसेस मुझे लगता है 534 535 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मीडियम टर्म आउटलुक रखें तो अगेन यहाँ पे फंडामेंटल्स पे चीज़ें जाके फिर से रुकेंगी कि डिमांड साइड डिस्ट्रक्शन है, सप्लाई कंसर्न्स जो थे वो धीरे धीरे अगर चिली में माइंस खुलते हैं तो वो सप्लाई डिसरप्शंस भी हट जाएंगे, तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। बट करेंटली इस वीक के लिए
मुझे लगता है मोमेंटम के साथ रहना चाहिए। बाई पोजीशन बनाए प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है कि अगर 524 का स्टॉप लॉस रखें, 534-35 का टारगेट पॉसिबल है देखने को मिल जाए। जी सुनील, आपकी कोई पिक रहेगी बेस मेटल पैक से? जी दीपाली, मुझे भी लगता है कि कॉपर एक पिक ऑफ द डे के तौर पे यूज किया जा सकता है। 528 529 के रेंज में बाय इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज युआन जो है 16 मंथ हाइस पे है अगर डॉलर के मुकाबले देखें तो। और इवन आई थिंक उनका मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी अच्छा आया है, और इवन इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 5.6% बेहतर आया है अगर हम अगस्त मंथ की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स मुझे लगता है कि डे पर्सपेक्टिव से जरूर कॉपर को सपोर्ट कर सकती हैं। तो 528-29 के रेंज में बाय इनिशिएट करके चलें, 526 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और 534 तक का डे पर्सपेक्टिव से टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कॉपर पर ही खरीदारी करने की सलाह है। 534 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे, साथ ही एग्री कमोडिटीज पर रहेगा फोकस। तो जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।